Good morning, class. Good morning. So let's start the revision of chapter number 2, the sound of music. It's part 2, that is the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so let's start in a detail. So here in the first para it is written about the history of Shehnai. Okay, the author here mentioned history of Shehnai. It is the time period of Emperor Aurangzeb, when it was banned the playing of pungi in the palace. औरंगजेब राजा के समय में बैन लग गया था कि कोई भी महल में पुंगी नहीं बजाएगा. The reason was that, what is the reason? Why did the emperor assign this one? The reason is that it had a very sharp, got it? It had a very sharp and unpleasant sound. जब पुंगी बजती थी तो उसका साउंड बहुत ही अनप्लीजेंट लगता था. Did you get my point? जो कानों में अच्छा नहीं लगता था तो औरंगजेब राजा ने उसको बैन कर दिया. He chose a pipe with a natural hollow stem. उन्होंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया which is having a shape of a pipe, right? एक पाइप की तरह था with a natural hollow, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए. Then he made 7 holes. उसके अंदर 7 holes बनाए on its that body. He played on it, closing and opening some of these holes. Then he played it, ताकि जो holes बनाए उसमें से एयर आर पार जा सके. बार बार उसको सांस देके फूका गया. Then it produced a very sweet sound. उसके बाद वाला साउंड जो था that is very sweet one. Then he played it before the royalty. It needed a name. Then it needed a name. So it was named after the player. जिसने बजाया था उसके नाम पे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया. And he was a barber, which we call in Hindi Nai. तो उसी के नाम पे, and as it was played in Shah's chamber, so that is why the musical instrument was named as a Shehnai, right? Yes. So this is the history of Shehnai. Then what is the connection between Shehnai with Bismillah Khan? We can go into it. The sound of Shehnai was considered auspicious. The sound of Shehnai, it was considered as a very important, valuable. So it is played in temples and at wedding in North India. तो शहनाई जब इन्वेंशन हुआ तो सबसे पहले इसे मंदिरों में बजाया जाता था या फिर नॉर्थ इंडिया पार्ट में वेडिंग टाइम में इसे यूज किया जाता था. Earlier it was a part of the traditional music groups. Then Ustad Bismillah Khan has brought it onto the classical stage. Earlier it was a traditional form. पहले इसे पारंपरिक रूप में बजाया जाता था, बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको एक क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का नाम दिया गया था, वाद्य संगीत. ठीक है. Then we discuss about Bismillah's childhood. Bismillah's childhood, right? About his early life we can discuss now. So at a 5-year-old Bismillah Khan played Gilli Danda, right? Near a pond in Dhumrao in Bihar. So he used to play Gilli Danda in Bihar, a village named Dhumrao. He would go to the nearby Bihariji temple. वहाँ पे एक टेम्पल था. The name of that temple is Bihariji. And there he would sing the Bhojpuri Chaita. वहाँ पे भोजपुरी में चैतर जैसे पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते थे टेम्पल में जाके, बच्चे सीखते थे, तो वो भी वहाँ सीखते थे. At the end, what happened after reciting the chaita? At the end, he would earn a very big laddu. बड़ा सा लड्डू मिलता था.
that is of weight of 1.25 kg. Okay, that laddu, उसका इतना वेट होता था. So it was on behalf of the local Maharaja, and this type of custom running through 80 years ago, 80 साल से पहले ये कस्टम चले आ रहा था वहाँ बिहार में, चले आ रहा था. वहाँ पे लड्डू ऐसे हमारे छोटे छोटे नहीं बनते, ऐसे बड़े बड़े बनते हैं शादी में. एक हाथ में तो आते ही नहीं है, 2 हाथ को यूज करना पड़ता है. आई हैव ऑलरेडी सीन दिस वन. वहाँ शादी में इस तरह के लड्डू नहीं बनते. किसी के घर में अगर मिठाई जाती तो पूरा उस लड्डू में उतना बड़ा लड्डू बनता था, इतना बड़ा, बिल्कुल एक हाथ में नहीं आता. मैं बता रही हूँ आपको. तो सोचिए, जब मैं बता रही हूँ कि 1.25 kg का लड्डू मिलता था आफ्टर दिस कस्टम. तो वहाँ पे मैरिज में यही होता है, 2 लड्डू, उस लड्डू में पूरा रोज के पेटल्स डाले जाते थे, ऐसा होता था. फिर जरक का पेपर लगाया जाता था. इतना अच्छा डेकोरेट किया जाता उस लड्डू कि लड्डू खाने से ज़्यादा उसका डेकोरेशन को ही हम यूज़ कर लें, इतना अच्छा ब्यूटीफुल होता. तो वहाँ का साउथ इंडिया का ऐसा कस्टम था, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट टाइप का कस्टम इस तरह का ही था. सो देन दिस लिटिल बॉय, 5-year-old boy, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेटर ही अर्न द भारत रत्न अवार्ड. यही उस्ताद आगे चल के बहुत फेमस हुए और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड. भारत रत्न सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड्स में से गिना जाता है. नाउ अबाउट हिज बर्थ प्लेस. बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन March 21, 1916. He was born in March 21, 1916 in a family of musicians in Bihar. His grandfather, Rasool Baks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpuri King's court. उसके फादर भोजपुरी के बाद राजा जो थे उस समय, उनके दरबार में शहनाई बजाया करते थे. His father, Paigambar Baks, and other ancestors were great Shehnai players. So, in short, we can say that Ustad Bismillah Khan ancestors were also engaged in this musical instrument, that is Shehnai. Now, let's talk about Bismillah Khan as a younger singer. The young boy Bismillah Khan took to music early in life. Starting में इसका म्यूजिक का पैशनेट हो चुका था. At 3, his mother took him to his maternal uncle house in Banaras. जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर ने maternal uncle means है अंकल, मामा. मैटरनल पार्ट जो भी होता है वो हमारे नानी की तरफ से होता है. मैटरनल ग्रैंडमदर दैट इज नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर दैट इज नाना जी, मैटरनल अंकल मामा जी, मैटरनल आंट मामी जी. समझ में आया? और आप अंकल और आंट बोलेंगे तो दैट इज आपके चाचा चाची कहलाएंगे, नॉट मैटरनल. मैटरनल इस तरफ से होता है, मदर साइड से. गॉट इट? सो at 3 his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. So his maternal uncle where he lives in Banaras. So Banaras उसे छोड़ के आ गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. He was attracted towards his uncle's practice, the Shehnai. बिस्मिल्लाह खान बहुत अट्रैक्ट हो गए कि जिस वे से उनके अंकल शहनाई बजा रहे थे. He became very much attracted. Then afterwards he started going with his uncle Ali Baks. ठीक है ना? फिर वो स्टार्ट हुआ कि वो अपने अंकल के साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ हो जाते थे. विष्णु टेम्पल इन बनारसी और टू प्ले द शहनाई. देन ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. फॉर ईयर्स द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माई, द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द प्लेसेस वेयर ही कुड प्रैक्टिस. मंदिरों में जाके बजाना, गंगा नदी के किनारे जाके बजाना, इन सब जगह में वो इतना बजाते थे, इतना प्रैक्टिस करते थे कि उनका एक हैबिट से बन गया था. देन एट द एज ऑफ 14, जब वो कितने साल के हुए? 14. बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference.
अब आए वो इलाहाबाद में. The opening of All India Radio in Lucknow in 1938 became a big break for him. He became a Shehnai player on radio also. रेडियो में गाने लगे 1938 में. इस तरह से धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चलने लगे. Bismillah Khan, the first Indian, the great, the nation with his Shehnai on August 15, 1947. He played Rag Kafi from Red Fort to people like Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. रेड फोर्ट पे उन्हें 15 अगस्त के दिन 1947 में शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया था. और ये बड़े ऑनर की बात है, सम्मान की बात है कि वहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ उस दिन झंडा फहराया गया तो उन्हें शहनाई वादक के रूप में याद किया गया था. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन many memorable performance both in India as well as in abroad. बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ हमारे देश में ही नाम नहीं कमाया बल्कि विदेशों में भी नाम कमाया था. His first trip abroad was in Afghanistan. कहाँ गए थे वो? अफगानिस्तान. King Zahir Shah was deeply impressed by Shehnai and he gave him priceless Persian carpets. और उन्होंने इतना इम्प्रेस हुए अफगानिस्तान के किंग कि उन्होंने उन्हें इतना शानदार आलिशान सा कारपेट दिया, प्राइसलेस, बिना कुछ ले, जो इतना कॉस्टली था, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कारपेट डोनेट किया. देन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड. अब इंडियन थिएटर में आएगा. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत इम्प्रेस्ड हुए. ही नेम्ड हिज फिल्म गूंज उठी शहनाई आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज वेरी फेमस फिल्म, गूंज उठी शहनाई. उन्होंने उन्हीं के नाम के इंस्ट्रूमेंट को लेके ये फिल्म का नाम रखा था. द फिल्म वॉज हिट, सुपर हिट रही उस टाइम की. आज भी देखने लगा कभी आई पुरानी गूंज उठी शहनाई. एंड हिज कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, दिस इज द सॉन्ग इन दैट फिल्म, became a record breaker हो गया. ये गाना इतना पॉपुलर हुआ उसका नाम हुआ रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक ओके इन फिल्म्स डिड नॉट गो बियॉन्ड विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivas कन्नड़ फिल्म सनादि अपानन. He found the film world artificial and glamorous. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को फिल्म लाइन में नहीं जाना था. According to him, it was the life of an artificial one, glamorous world. That is why he doesn't want to enter in that world. ये दो ही उन्होंने पिक्चर, एक कन्नड़ पिक्चर में उन्होंने अपना रोल दिया था और हिंदी की एक पिक्चर्स में, उसके बाद वो इंडियन फिल्म थिएटर में नहीं आए. Then he could not compromise with it. म्यूजिक के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडियन फिल्म थिएटर में एंटरिंग नहीं करी. Awards came in plenty for him. He became the first Indian to perform at the Lincoln Central Hall in the USA. He took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Many places he has visited and give his performance. An auditorium in Tehran was named after Teher Mosque Ustad Bismillah Khan. उनके नाम से बहुत सारे बिल्डिंग्स, ऑडिटोरियम उनके नाम से बने. And national awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan व भारत रत्न was conferred by him. इतने सारे अवार्ड जीते हैं. In 2001, he was awarded by the highest civilian award, that is Bharat Ratna. At this he said, teach your children music. उन्होंने उस दिन कहा था कि बच्चों को क्या सिखाओ? म्यूजिक सिखाना चाहिए. This is the Hindustani richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. West means
foreigners, they are also interested to take music in their life also. Earlier it was only for the Indian culture only. Indian culture में था music. लेकिन West यानी कि foreigners, they are also very much appreciated and they took this one as a part of life. Bismillah Khan has traveled all over the world, but he is greatly fond of Banaras. बहुत जगह घूमे मगर वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे बनारस और दुमराव जहाँ वो पैदा हुए थे. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. He promised to recreate an atmosphere of Banaras by making temples there. But Khan Sahib asked that if you would transfer river Ganga there, क्या तुम अपने गंगा नदी को एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकते हो? तो मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता. He says that whenever he is abroad, he yearns to see Hindustan, while in Mumbai he thinks the only Varanasi and the holy Ganga. Okay, जब भी वो इंडिया में रहते, उनका अट्रैक्शन बनारस और दुमराव की तरफ ही रहते, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो. इसी तरह जब वो अब्रॉड में रहते तो उनका ध्यान यही रहता कि इंडिया में क्या हो रहा. उस्ताद बिस्मिल्लाह's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. It accepts that a Muslim like him can play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So here we learned a message from Ustad Bismillah Khan, though he was a Muslim one, है ना. वो मुस्लिम इंसान होते हुए टेम्पल में शहनाई बजाते थे, हर एक वेडिंग में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देते, विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी कास्ट, रिलीजन और सेक्ट. Isn't it? It's a great example for us. कोई धर्म को नहीं उन्होंने समझा कि वो मुस्लिम है तो मंदिरों में ही जाके सीखते थे. बनारस में, बनारस तो इज ए वेरी होली प्लेस, पवित्र जगह है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं. उन्होंने वहीं जाके शहनाई सीखी और उसका यूज भी वहीं किया. ओके, सो वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट इन म्यूजिक नो रिलीजन शुड बी देयर, नो कास्ट शुड बी फाउंड. म्यूजिक सिर्फ एक कला है, एक होली चीज़ है, पवित्र चीज़ है जिसे हमें सीखना, हमारे मन को शांति मिलती. ना म्यूजिक किसी धर्म को देखता है, ना जात को देखता है. अंडरस्टूड?